हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट द ट्रिग्नोमैट्री। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ? ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ। ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਐਂਗਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਥਿਊਰਮਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਮਨਾਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ, ਕੋਈ ਪਲੇਨਸ ਆਪਸ 'ਚ ਫਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਮੀਨਾਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਚਾਈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਰਡਸ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਚਾਈ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੀਨਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋ ਪਲੇਨਸ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਇੱਥੇ, ਦੋਨੋਂ ਉੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਨਸ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਬਾਏ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ? ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਬਸਟੀਚੁਐਂਟਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ 90 ਡਿਗਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਗਲ ਔਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਜੋ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਔਰ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਬੇਸ। ਜੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਔਰ ਜੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਸ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं? लंब। जो बेस है उसको क्या बोलते हैं? आधार। हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं? कर्ण। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਸਾਈਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੌਸ, ਥਰਡ ਟੈਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੇਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ABC। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਸਾइन A फाइंड करना चाह रहे हैं ਆਪਾਂ, तो साइन A की क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइड क्या होगी? CB बाय CA। इसनों अनदर फॉर्मूला साढ़े को सौखा सीखने वास्ते क्या है, हम देखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें डिवाइड का नाम पा दें। और सोना चांदी तो साइन का फॉर्मूला हो गया ये हो गया कॉस का फॉर्मूला, और ये हो गया टैन का फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। कोई भी हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, एक बार हम ए एंगल फाइंड करेंगे, एक बार हम सी एंगल फाइंड करेंगे।
ये 90 डिग्री है अकॉर्डिंग टू हम सानू पता भी 90 डिग्री और जो भी एंगल अगर हम साइन ए फाइंड करन लगे हैं साइन ए फाइंड करन लगे हैं तो 90 ए है की है परपेंडिकुलर ओवर हाईपोटेन्यूज परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाले नूं आपां की बोलते हैं हमेशा परपेंडिकुलर क्या हो गया सी बी बाय सी ए ओके अगर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस ए क्या हो गया बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बेस क्या होता है एंगल और 90 डिग्री के बिटवीन वाली साइड क्या होगी ए बी ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे tan ए को tan ए क्या है परपेंडिकुलर ओवर बेस परपेंडिकुलर क्या है सी बी ओवर ए बी ये तो हमें 3 बता देंगे मैंने क्या बोला था 6 आइडेंटिटीज है साइन कॉस और टैन ठीक है। अब साइन की भी एक उल्टी होती है उसको क्या बोलते हैं कोसेकेंट ए इसको क्या बोलेंगे साइन की उल्टी बोला है ना मैंने तो साइन ए 1/CB ओवर सी ए रेसिप्रोकल लिया तो क्या बन गया सी ए ओवर सी बी। नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंट ए ये किसका रेसिप्रोकल होता है ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो क्या बन गया ये नेक्स्ट हमारे पास क्या है कॉट ए ये क्या होता है 1/tan ए किसका रेस क्या हो गया इसका Here we learn all the angles, all the trigonometric ratios, sine angle, cos angle, tan angle, cosecant, secant and cotangent सारिਆਂ ਨੂੰ with an angle A find किया। अब हम इसे with an angle C find करेंगे अगर हमारे पास ये एंगल होगा तो क्या फ़र्क होएगा तो सिमिलरली अगर ये अब हमें इसे एंगल C ले लिया तो इसे नहीं लेंगे इसका मतलब क्या हो गया एंगल के 90 डिग्री और एंगल के कॉमन वाली साइड क्या हो जाएगी बेस अब इसे बेस बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर अदरवाइज हम क्या करेंगे इसे रोटेट कर कर देख लेंगे तो सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगी ना जो पहले थी हमारे पास तो वैसे ही तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर नाइन्टी डिग्री के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो साइड होती है उसे क्या बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। अब सभी साइन एंगल विद सी साइन विद सी एंगल साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज तो इस ट्रायंगल में विद एंगल सी परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास ए बी हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ए सी अगर हम करेंगे कॉस सी की कॉस का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो एंगल सी के अकॉर्डिंग बेस क्या हो गया हमारे पास सी बी अपॉन ए सी। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे tan सी की बारी इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास ए बी बेस क्या हो गया बी सी। तो बाकी हमने क्या पढ़ा था कोसेकेंट एंगल किसके ऑपोजिट होता है साइन सी के कोसेकेंट सी ऑपोजिट टू साइन सी यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। सिमिलरली सेकेंड सी हमारे पास हो जाएगा ए सी अपॉन सी बी और कोटेंजेंट सी हमारे पास क्या हो जाएगा सी बी अपॉन ए बी। ओके
तो नेक्स्ट हम इनकी कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज़ के साथ सॉल्व कर एक दो क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब आगे फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। हमारे पास क्या है, गिवन टेंजेंट ए 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए विद एंगल ए। सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक ट्रायंगल, हमने कोई ट्रायंगल ले ली ए बी और सी। तो अब हमें क्या गिवन है, tan ए गिवन है 4/3। tan हमने क्या पढ़ा था, किस चीज़ के बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस विद द पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन सोना चांदी तोले। तो टेंजेंट का क्या हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो एंगल क्या है, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, ये साइड। इसे हमने क्या कह दिया, सम 4, परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट बाय 4 विद सम कांस्टेंट, मल्टीप्लाई कर देंगे अपन कोई कांस्टेंट, क्योंकि ये रेशियो है ना, रेशियो में तो कॉमन साइड हम कट कर देते हैं। और ये क्या हुआ, बेस, बेस क्या हो गया एंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 विद सम कांस्टेंट। राइट एंगल ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हम क्या कर देते हैं, उसमें से अगर हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ से क्या करेंगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास, ए बी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस क्या है हमारे पास 3k, इसका स्क्वायर। बेस क्या है, BC क्या है हमारे पास 4k, इसका स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ऐसे ही चलेगा। तो हम करेंगे 3k का स्क्वायर क्या होता है 9k स्क्वायर, 4k स्क्वायर का क्या होता है 16k स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। दोनों को ऐड किया, कांस्टेंट सेम है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, ऐड हो जाती है। 16 + 9 क्या होगा 25k स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या आ गई, वैसे तो हमें मालूम है प्लस माइनस जो भी हम स्क्वायर रूट हटाते हैं, पर ये क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होएगा। तो इसकी क्या वैल्यू आ गई 5k। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक हमें tan मालूम है, टोटल कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है 6। तो हमें कौन सी फाइंड करनी है, साइन ए, कॉस ए, tan ए, सीक्वेंट ए, कोसीक्वेंट ए और कॉट ए। अकॉर्डिंग टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से हमने क्या फाइंड किया, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसे लिख देंगे हम परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4k, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आई 5k, k के साथ k कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 4/5। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, कॉस है, फ्रॉम दिस कॉस किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इन डायग्राम बेस क्या है हमारे पास 3k, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 5k, k के साथ k कैंसिल, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 3/5। tan ए, tan भी क्या बात है, tan तो हमें मालूम ही है 4/3 है। नेक्स्ट है सीक्वेंट, हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है 1/cos ए।
कॉस ए की वैल्यू क्या आई 3/5, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5/3। नेक्स्ट हमारे पास कोसिकेंट है, ये क्या होता है 1/sin ए, साइन ए की वैल्यू क्या है 4/5, ये क्या आ गई 5/4। कॉट ए किसके बराबर होता है 1/tan ए, tan ए की वैल्यू क्या है 4/3, दैट इज इक्वल टू 3/4।